So mainly जो इसमें questions आते हैं, that is what are the aims and objectives of the harmonized system of service and certification. So ये है what standardized seeks to standardize the period of validity and the interval between service to a maximum period of validity of all certificate for 5 years except passenger ship safety certificate. Right, then types of now कौन-कौन से certificates को cover करता है? What all system covers survey and certification? वो ये है. Types of survey अलग है. So do not confuse again between the system वो कौन-कौन से surveys को cover करता है, कौन-कौन से conventions को cover कर रहा है. Right, and types of surveys are different. Annual survey, intermediate survey वो अलग चीज है. But ये जो आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे it covers so many conventions. Aim harmonized system is to remove all the problems which are caused by survey dates and intervals between survey dates which do not coincide. So aims and objectives एक आपका question है ये. Next आता है what are the main features या salient features of HSSC या main features. So it provides a standard 1 year interval between surveys, मतलब initial survey, उसके बाद anniversary date मिल गई है आपको. So every year annual, intermediate, periodical renewal as appropriate. Anniversary date दे रखी है ship को. A scheme for providing the necessary flexibility for the execution of each survey. Right? That means flexibility दे रखी है that जो आपकी जो date है, anniversary date है, you can conduct the survey 3 months before and 3 months after the due date, जो anniversary date है. So ये आपको flexibility दे रखी है. And एक provision दे रखा है for the renewal of the survey. एक तो annual survey है, तो वो तो annual है, first, second, third, fourth annual, ये तो annual surveys है. And then is your renewal survey day. उसके लिए भी एक provision दे रखा है. That renewal survey can be done within 3 months without loss of validity. वो जो period है पहले वाले का उसको वो lose नहीं होगा. So you can carry out the renewal survey 3 months before the expiry of your existing certificate. और आपका जो नया certificate है उसकी जो validity शुरू होगी, although you have done it 3 months before or any time in between, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होगी it will begin from the expiry of your existence certificate. तो मतलब जो तुम्हारा पुराना सर्टिफिकेट था वो वैलिड रहेगा till the date of its expiry. और जो सर्वे किया है वो आपने 3 महीना पहले करा लिया है और एनी टाइम बिटवीन दैट उसकी वैलिडिटी शुरू होगी from the expiry of your existing certificate. In other words, जो आपका प्रीवियस सर्टिफिकेट था उसकी लॉस ऑफ वैलिडिटी पीरियड की नहीं रहेगी. इट विल स्टिल बी वैलिड जो उसकी डेट है. ओके, सो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years फॉर ऑल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट वो जो पैसेंजर शिप कार्गो सर्टिफिकेट है उसका 1 साल है. A system for the extension of the certificates. राइट, एक्सटेंशन ऑफ सर्टिफिकेट कब करोगे? जब वो एक्सपायर होने वाला है, 5 साल पूरे होने वाले हैं. So, in case that certificate is going to expire and you are not able to carry out the renewal survey, then you can request for an extension up to 3 months for ships which are engaged in longer sailings, long voyages, and up to 1 month for ships which are engaged in shorter voyages. तो मतलब आपका सर्टिफिकेट लेट्स से आज एक्सपायर हो रहा है, you can request for extension 3 months for vessels on longer voyages, 1 month for vessel on this thing. But you should make all attempts, all efforts, endeavors to ensure that your certificate जो रिन्यूअल करा रहे हैं आप वो एक्सपायर होने से पहले करा लीजिए. ओके, वह जहां पे एक्सटेंशन ग्रांट किया गया है, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द एक्सटेंशन विल आल्सो
अब आपका 3 महीने पहले से आज आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है और आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, राइट। फिर आपने सर्वे करवाया समटाइम अगस्त सितंबर में, 3 महीने का आपको एक्सटेंशन मिला, तो अगस्त सितंबर समटाइम आपने सर्वे करा लिया। तो जो नया सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा उसकी वैलिडिटी कब से शुरू हो जाएगी? फ्रॉम टुडे, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो डेट चेंज नहीं होगी। डेट चेंज हो गई तो मतलब एनिवर्सरी डेट चेंज हो गई तो मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। सो तुमको एक्सटेंशन दिया गया है, आपने सितंबर में सर्वे कराया, तो नया सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ योर एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट बिफोर एक्सटेंशन, जो आपकी एक्सपायरी थी। Okay, so this were the main features of the HSSC. Yeah, salient features of HSSC. Next are the types of survey. Once again, like I said, do not confuse between the types of survey and the surveys which the system covers. Right? So, वो अलग चीज है. So now, your load line, ये है आपका initial survey होता है. Then आपका annual survey होगा हर एक साल में, 3 महीना पहले 3 महीना बाद कभी भी करा लो. फिर आपका पीरियोडिकल होता है या इंटरमीडिएट होगा. नॉर्मली इट इज डन अलॉन्ग विद द सेकंड और द थर्ड एनिवर्सरी, 3 महीना पहले 3 महीना बाद. जब आप एनुअल के लिए बुला रहे हैं, सेकंड एनुअल के लिए, तो उस टाइम में आप इंटरमीडिएट करा सकते हैं या पीरियोडिकल करा सकते हैं, राइट. सो पीरियोडिकल और इंटरमीडिएट 2.5 साल में होने चाहिए, बट आप सेकंड या थर्ड के साथ करा सकते हैं. 3 महीना पहले 3 महीना बाद, सेकेंड एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी. एंड देन आपका फाइनली रिन्यूअल सर्वे होता है, विच यू शुड कैरी आउट 3 months बिफोर. डोंट अलाउ इट टू एक्सपायर, डोंट आस्क फॉर एक्सटेंशन, वो अच्छा भी नहीं लगता है. देन इंस्पेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द शिप्स बॉटम, छठा है आपका. इन एनी 5-year period there will be a minimum of 2 inspection of the outside of the ship's bottom. One of them will be afloat and the other in the dry dock. और जो interval है between 2 consecutive surveys, that should not exceed 36 months. मतलब चाहे फ्लोट कराइए या ड्राई डॉक करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, अगर आपने एक करा लिया आज तो 36 मंथ्स के अंदर आपका दूसरा हो जाना चाहिए. इफ यू आर डूइंग ड्राई डॉक नाउ, देन 36 मंथ्स के अंदर यू शुड हैव एन फ्लोट इंस्पेक्शन. और इफ यू आर डूइंग अ फ्लोट नाउ, सो द इंटरवल बिटवीन 2 पीरियड सर्वेज शुड नॉट एक्सीड 36 मंथ्स. और 5 साल के अंदर कम से कम 2 इंस्पेक्शन होंगे. एंड फाइनली you have additional survey, number 7. additional survey तब होगा जब should something go wrong, कोई major repairs किए हैं जहां पे सर्वेयर को आना पड़ा, या कोई डैमेजेस हुए हैं, या फायर हुआ है, या इंजन में कुछ हुआ है, राइट. तो देन यू कॉल फॉर अ सर्वे. सर्वेयर जो अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगी कि सर्वे की जरूरत है या नहीं है, और है तो देन दे विल सेंड द सर्वेयर. And accordingly survey will be. The entire idea of the surveys is to ensure that your vessel remains fit, watertight, integrity maintained at all times. So these surveys are good in your interest. ठीक है, तुम्हारे अपने सेफ्टी, अपने इंटरेस्ट के लिए जरूरी है. There is no point hiding anything from the surveyor. अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ओके, नाउ अभी तक तो मैंने ये आपको जो बताया, ये एक लिस्ट है 7 टाइप्स ऑफ सर्वेज. अब जो आ रहा आपका ये टाइप्स ऑफ सर्वे, हर एक टाइप के सर्वे को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. अगेन यहाँ पे आई एम जस्ट टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर
स्लाइड कि इनिशियल सर्वे होता क्या है, राइट। फिर आता है स्कोप ऑफ द सर्वे, कि उस सर्वे में, इनिशियल सर्वे में क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी। देन फर्स्ट एनुअल सर्वे, मतलब एनुअल सर्वे कब होता है, राइट। एंड देन स्कोप ऑफ द सर्वे मीन्स व्हाट ऑल इज चेक्ड ड्यूरिंग दैट एनुअल सर्वे। सो नाउ दिस वन फॉर एग्जांपल, ये क्या है, अ कंप्लीट इंस्पेक्शन, इनिशियल सर्वे। दैट मीन्स इनिशियल सर्वे कब होता है, जब जहाज फर्स्ट टाइम यार्ड से बाहर निकल रहा है, और व्हेन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट अप्लाइज टू एन एक्जिस्टिंग शिप, तो इनिशियल सर्वे होता है। लेट्स से आपका ये जो बैलेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है, एग्जिस्टिंग शिप्स है, नए रेगुलेशंस आए हैं, बैलेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए। सो वो जब सिस्टम इंस्टॉल होगा जहाज पे, तो सर्वे इज गोइंग टू कम एंड चेक वेदर इट इज मीटिंग जो बैलेंस वाटर कन्वेंशन है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो इक्विपमेंट आपने लगा रखा है इज इट मीटिंग द क्राइटेरिया सेट बाय IMO। सो वो इनिशियल इंस्पेक्शन करने आएगा, और शिप कंस्ट्रक्शन जो सेफ्टी कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है उसमें ऐड कर देगा कि जहाज में एक नया चीज इक्विपमेंट लगा है, वो उसको ऐड कर देगा। लेट्स से एक्डिस नहीं थे पहले शिप्स में, लेटर ऑन एक्डिस बिकेम मैंडेटरी 2012 से। All ships must have primary means of navigation exist, ECDIS. So ships which were built after a particular date 2010 के बाद उनमें था ही ये ECDIS built in। लेकिन जो जहाज पुराने थे जिनमें ये ECDIS सिस्टम नहीं था, रेगुलेशन सेट 1 जनवरी 2012 सब में ECDIS लगना जरूरी है। एक मिनट होल्ड करो सर।
ओके सर, सो बैक अगेन। ये थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है यार आज बहुत। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर आपको? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, सो ये आपका इनिशियल सर्वे है। So inspection related to a particular certificate before the ship into can you hear me everyone? हाँ सर, अब आ रही है। यार आजकल एक तो ये इन्होंने नया फाइबर नेट डाला है ना हमारे उधर में, एयरटेल वालों ने। घर के आगे ही सब खोद खाद करके इन्होंने। ओके, सो यू कैन हियर मी नाउ। ओके, स्क्रीन भी दिख रहा है आपको? वेरी गुड। हेलो, बुला रखा है इन लोग को हमने, एयरटेल वालों को। ओके सर, सो दिस इज इट। फर्स्ट आपका वो हो रहा है। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ, मुखड़ा दिखा रहे हैं कि क्या होता है एनुअल सर्वे, इनिशियल सर्वे, एनुअल सर्वे। अब एनुअल सर्वे क्या है? जनरल इंस्पेक्शन ऑफ आइटम्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। यार हेलो, अरे सर आवाज। हाँ आ जाओ यार। फर्स्ट फ्लोर, C5/3, फर्स्ट फ्लोर। ओके, सॉरी गाइस, इनको बुला रखा है मैंने, एयरटेल वालों को। ओके, सो ये आपका एनुअल सर्वे है। एनुअल सर्वे जनरल आइटम्स इंस्पेक्शन होता है ऑफ ऑल द आइटम्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। सो लेट्स से अगर हम लोड लाइन्स का इंस्पेक्शन करा रहे हैं, एनुअल सर्वे करा रहे हैं, तो लोड लाइन से रिलेटेड, लोड लाइन सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनका सर्वे किया जाएगा। सेफ्टी कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, so he will not touch the load line. He will survey all the items or some of the items related to that particular certificate. Similarly, safety equipment है, safety radio है, so annual survey हो रहा है safety equipment का. So all the items or some of the items he is going to check regarding safety equipment pertaining to that particular certificate जिसका सर्वे करवा रहे हैं. If he's like once again, if he's coming for a thickness measurement, मतलब आपका ESP हो रहा है enhanced survey program, तो वो enhanced survey program से related सब कुछ चेक करेगा. फिर intermediate survey, specified items during that survey. Annual survey, periodical survey, inspection of items related to that particular certificate to ensure they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the vessel is intended. राइट, रिन्यूअल सर्वे अगेन 3 महीना पहले रिन्यूअल के लिए आएगा. ओके, अब आउटसाइड ऑफ द शिप्स बॉटम टू इंस्पेक्शन इन एवरी 5 year पीरियड एंड इंटरवल जैसे मैंने बताया नॉट मोर देन 36 months बिटवीन द टू. एडिशनल सर्वे कब होगा? एडिशनल सर्वे पार्शियल हो सकता है, जनरल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. कोई मेजर रिपेयर्स की है विच हैज अफेक्टेड द what do you call water tightness, watertight integrity of the vessel, या कोई फायर हुई है, कैजुअलिटी हुई है, ग्राउंडिंग हुई है, कोलिजन हुआ है, तो तब वो आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए. और जब इंस्पेक्शन रिपेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगेन ही विल कम टू चेक दैट द रिपेयर्स हैव बीन कैरिड आउट सैटिस्फैक्टरीली. तो ये आपका जनरल ओवरव्यू है. नाउ कम्स
the description of the surveys. Initial survey, frequency and scope. Right? So this is the main thing. So थोड़ा differentiate करना देखो इसमें. एक मिनट में आ रहा हूँ. हाँ, just 1 minute. Okay, sir. So now description of various surveys. Initial survey कब होता है? First anniversary initial survey when the ship is coming out for the first time. ये मैंने आपको बता दिया. नहीं क्या कर रहे थे? हाँ, description of various types of surveys. Initial survey should be held before the ship is put into service or when an instrument applies to an existing ship for the first time. क्या क्या होता है initial survey में? Include a complete inspection of the structure. उसका जो मशीनरी है, उसका जो इक्विपमेंट है, उसका कंप्लीट इंस्पेक्शन होगा टू एंश्योर दैट दे आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट एंड फिट फॉर द सर्विस फॉर विच द शिप इज इंटेंडेड. अब जितने भी प्लान्स हैं, डायग्राम्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है, उन सबको वो चेक करेंगे. जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो ड्राइंग्स बनाए, प्लान्स बनाए, सब कुछ लोड कैलकुलेशन, ये कितना नीचे जाएगा, उसका जो प्लिंथ है वो कितना नीचे रहेगा, पिलर्स कितने नीचे तक जाएंगे, फाउंडेशन कितनी गहरी, वो सारे लोड कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम सबमिट करते हैं. सर्वेयर फिर सारा चेक करेगा टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज सेफ. सो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग द इनिशियल सर्वे. An inspection of the structure, machinery, equipment to ensure that जो materials हैं, scantlings हैं, construction, it is all according to the diagrams, approved plans. तो एक बार तो plans approval होंगे and then during the construction they will make sure that the ship is being constructed according to approved plans. जो diagrams, calculation है वो सब. Then they will ensure that जितने भी certificates हैं वो जहाज पे हैं, record books, operating manuals, instructions manual, load test certificates, जो भी हैं relating to that particular certificate, they are all placed on board. Let's say safety equipment है, तो safety equipment से related आपके life boats है, तो life boat का certificate जहाज पे होना चाहिए. जो wire use किया उसका certificate, davits है उसका certificate, winches है, brakes है, everything. They will ensure that everything, all documentation, all books, record books, certificates, they are kept on board relating to that particular certificate. Life rafts है तो life rafts के सारे certificates आपके पास होंगे. जो quick release है वो hydrostatic release है, या जो fire extinguishers है. So everything should, they will ensure that everything is on board. फिर annual service है. Annual survey के लिए वो आएंगे आपके every year, 3 months before, 3 months after. ये उसका frequency है, हर साल होगा, 3 महीना पहले, 3 महीना बाद. स्कोप क्या है? स्कोप में ये है, they will want to see that you are maintaining the vessel as required by the regulations. Once again, like I said, they are not coming on board to find mistakes. They are coming to ensure that your vessel is being maintained as required by the regulations. Just 1 minute here.
चलिए, ओके, फिर आपका ये एनुअल सर्वे, एडमिनिस्ट्रेशन विल इंश्योर दैट यू आर मेंटेनिंग द वेसल एज रिक्वायर्ड बाय द क्लास। उसके लिए वो आ रहे हैं, नॉट टू फाइंड मिस्टेक्स बट टू इंश्योर दैट यू आर मेंटेनिंग द वेसल। क्या क्या चेक करेंगे? दे विल चेक योर सर्टिफिकेट्स, visual inspection to a certain extent of the ship to ensure that all the certificates are on board, record books on board, maintenance has been carried out. और थोड़े टेस्ट कर सकते हैं। थोड़े टेस्ट भी, let's say for example he might ask you to start your fire pump और lifeboat engine चालू कर दो या emergency generator चालू करो, you know, these kind of things, क्योंकि नया जहाज है, पहला एनुअल सर्वे हो रहा है। एंड ऑफ ईच एनुअल सर्वे इज गिवन इन द गाइडलाइंस। एक चेकलिस्ट होती है, आपके पास भी जहाज में होती है, फॉर्म्स मैनुअल में होगी, वेयर यू कैन सी व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी चेक्ड प्रायर टू कॉलिंग द सर्वेयर। सो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी रेक्टिफाइड एंड द वेसल मेंटेन्ड इन ऑर्डर। अगर कुछ गड़बड़ लगती है सर्वेयर को या उसको कुछ डाउट लगता है तो देन ही विल बी गाइडेड बाय द रूल्स। नाउ if you do not carry out the annual survey, intermediate survey, 3 महीना पहले 3 महीना बाद जो हो रहा है, then the certificate becomes invalid. और एक क्वेश्चन आपका आता है, when does the certificate become invalid and how is the validity restored? So simple सा है, a certificate becomes invalid अगर उसका जो annual periodical है या what do you call intermediate survey, it is not carried out within the due dates. So then it becomes invalid. Expire hona or invalid hona are two different things. So the certificate becomes invalid. और उसकी validity को कैसे restore करते हैं? Then by calling the surveyor. जो आपका surveyor है, आप उसको बुलाएंगे and he will carry out the survey. And he will also verify from you why you did not carry out the survey during that period, how much time was allowed to elapse, और उसकी जो स्ट्रिक्टनेस होगी, थॉरनेस होगी, स्ट्रिंजेंटनेस होगी, वो डिपेंड करता है कितना टाइम आपने उसको लैप्स किया सर्टिफिकेट। सो ये एक क्वाइट अ कॉमन क्वेश्चन। फिर इंटरमीडिएट सर्विस है, अगेन सेकेंड एनुअल के साथ करा लीजिए 3 महीना पहले या बाद, या थर्ड एनुअल के साथ करा लीजिए 3 महीना पहले या बाद। अगेन स्पेसिफिक आइटम्स इन दैट आर चेक पीरियोडिकल इसमें, just to make sure that you are maintaining the vessel as required and the ship or the equipment is in a perfect condition, satisfactory condition and fit for the service for which the vessel is intended. So जितने भी items है, जितने भी equipment, machinery है on that particular day, they should all be up to date in good working condition. Again, अगर आपने नहीं कराया उसको due date के अंदर, intermediate या periodical, then the certificate becomes invalid. Periodical cargo ship safety equipment, cargo ship safety radio के लिए होता है. That is in case you do not carry out within that 3 महीना पहले 3 महीने बाद वहां भी एक्सपायर हो जाएगा, बट इन दोनों के लिए हम लोग होते हैं पीरियोडिकल सर। ओके, क्या क्या होता है उसमें? इंस्पेक्शन होंगे, टेस्ट होंगे। इंस्पेक्शन मीन्स विजुअल इंस्पेक्शन करेगा, एवरीथिंग इज नाइसली लुब्रिकेटेड, वर्किंग, पंप्स आर वर्किंग, योर इमरजेंसी जनरेटर्स, उसके लिए वो टेस्ट वेस्ट कराएगा, जस्ट टू इंश्योर दैट योर एंटायर शिप is fit for the service. Renewal, again renewal होता है, again सारी चीजें चेक की जाएंगी, all the items will be checked, records, maintenance, जो आपने PMS का रखा है वो चेक करेगा, रिकॉर्ड्स चेक करेगा, बुकलेट चेक करेगा, क्या कहते हैं आपके पास मेंटेनेंस मैनुअल उसकी है, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है, वो सब चेक करेगा। सबके सर्टिफिकेट्स, एवरी इक्विपमेंट, अगर आपने कोई वायर चेंज किया है, गैंगवे वायर फॉर एग्जांपल यू हैव चेंज, तो गैंगवे वायर का सर्टिफिकेट आपने चेंज किया है या नहीं किया है, एंट्री की नहीं है अपने PMS में, ऑल दैट विल बी चेक्ड।
Okay, inspection of the outside of the ship's bottom, already discussed. No inspection. A float inspection तब होता है if the conditions permit. मतलब जिस पोर्ट में आप अफ्लोट इंस्पेक्शन करा रहे हैं, अंडर वाटर इंस्पेक्शन, वहां फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. मतलब there should be a person, a diver who can go down, who has experience of conducting an underwater survey. पानी क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि मडी वाटर है that the surveyor cannot see anything. So the diver goes down with the camera, video camera, and on the jetty surveyor सब कुछ देखता रहता है on the monitor. कुछ उसको डाउट होता है, then he will ask for a close up, and of course it is being recorded, you can see it again. That is your underwater, afloat. वहां facility होनी चाहिए and water should be relatively clean. Okay, then finally you have inspection outside the yoga. फिर ESP code, चलो वो next time ले लेंगे. ESP code 15 years of age के ऊपर हो गया. Additional surveys, ये भी आपका short notes आता है. Whenever an accident takes place or a defect is discovered which affects the safety and integrity or efficiency of the ship, the master should फिर administration decide करेगा whether a survey is necessary, and if yes, then the surveyor will come on board, and maybe depending general हो partial हो on the circumstances, maybe a condition of class is given, maybe everything is okay, so that the surveyor will decide. Completion report बनती है, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है इसमें, बट कंप्लीशन का मतलब जब रिपोर्ट बन गई, सारा हो गया, the survey is guided by the rules. He will either issue a certificate, or he will issue a condition of class, or he might, if the ship is in bad condition, he might recommend to withdraw the certificate, or he might recommend to complete the entire repairs before the vessel sails out, or he might say tell the administration, मतलब जो boss है उनका जहाँ भी headquarters में, to remove the vessel from class. So not only that particular certificate, the entire vessel will be out of class then. There are rules, rules regarding. ऐसी नहीं कि उसके मर्जी की बात नहीं है. Revalidation. So when does the certificate become invalid? Invalid if the periodical intermediate annual is not done within that period. Validity should be restored by carrying out the appropriate survey. Right? उसकी जो strictness है, thoroughness है, वो डिपेंड करता है how long the survey was allowed to lapse. यह है आपका एक diagrammatic arrangement of the surveys. 4-5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो डोंट गेट कंफ्यूज. डायग्रामेटिक अरेंजमेंट. सो आपने ऊपर की रो में दिखाना है, क्योंकि 5 साल की वैलिडिटी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दीजिए. नीचे मंथ्स लिख दीजिए. मतलब फर्स्ट एनुअल कब होता है? 12 महीने के बाद, 3 महीना पहले, 3 महीने बाद. सेकेंड एनुअल 24 मंथ्स, 3 महीना पहले, 3 महीने बाद तक आप करा सकते हो. सो वैसे 3rd, 4th, 5th, एंड जो रिन्यूअल है वो 3 महीना पहले. लेफ्ट हैंड साइड में आप सारे वो लिख दीजिए सर्टिफिकेट्स, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करना है. पैसेंजरशिप आप जानते हैं कि इट्स ओनली वैलिड फॉर 12 मंथ्स, तो आर पूरा रिन्यूअल है. बाकी एनुअल होगा, इंटरमीडिएट होगा, पीरियोडिकल होगा, वो यहाँ टेबल में दे रखा है. 5 साल के बाद आप देखेंगे सब रिन्यूअल है. List of certificates that you are supposed to be carrying on board. Quite a common question again. Okay. Then, prior to load line survey, how will you prepare your vessel for a load line survey? Checklist है, already भेज चुके हैं, ये सारे notes मिल गए ना आपको? Any shortages anywhere? एंड देन फाइनली यहाँ पे आपका है कि सेफ्टी कंस्ट्रक्शन सर्वे. ये 2 क्वेश्चंस आपके उसमें हैं.
लोड लाइन का क्वेश्चन काफी कॉमन है. So this is how you will prepare your vessel for a safety construction certificate, a survey rather.